in previous class. Now in today's class we are going to study another important topic, that is your latent heat. Okay, in this chapter we will study about latent heat. Okay, latent heat basically क्या होती है? It is related to heat capacity, but there is a minor difference between latent heat and heat capacity. What is heat capacity? Heat capacity is basically, latent heat is the amount of heat absorbed or released at a fixed temperature latent heat is the amount of heat absorbed or released at a fixed temperature when the change of state is taking place. Okay, so whenever the change of state is taking place, I have told you earlier as well, the change of state take place at a fixed temperature, at a particular temperature. If a substance is melting, then it will melt at a particular temperature, and that is called its melting point. If a substance is freezing, it will freeze at the same temperature, which is called its freezing point. Similarly, in case of boiling, if a substance is boiling, it will boil at a fixed temperature and it will change its state from liquid to gaseous state. Similarly, it will condense at the same temperature. So at the same temperature, at fixed temperature, whenever the change of state takes place, so during the process of changing of state during the process in which the change of state is taking place, whatever heat energy the substance will absorb, that will be called its latent heat. Okay, in other words, you can say that whenever a substance is changing its state, whether it will be absorbing heat energy or it will be releasing releasing heat energy, in both these situations, whether it's absorbing heat energy or it's releasing heat energy, the amount of heat it absorb or release, that will be called its latent heat. For example, let's suppose if I have a solid, if we have a solid, one more thing that let's suppose that if we have a solid ice, the temperature of that ice is, let's suppose, below, the temperature of that ice is, let's suppose, below 0 degrees Celsius. So when we provide heat energy to that solid, then what will happen? Its temperature is initially going to rise. Let's suppose temperature is minus 10 degrees Celsius. So by providing heat energy, its temperature is going to rise from minus 10 degrees Celsius till 0 degrees Celsius. ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है आपको 0 डिग्री सेल्सियस तक राइज करेगा. व्हेन द टेम्परेचर रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट हैपेंस? देन द सब्सटेंस विल स्टार्ट मेल्टिंग, एंड व्हेन इट इज मेल्टिंग, इट विल बी एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इट एब्जॉर्ब्ड until whole of the ice has been melted, that amount of heat is called its latent heat. वो आपकी जो अमाउंट एनर्जी, वो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा उस पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, जब तक कि वो पूरा ऊपर आपकी जो सब्सटेंस है अपना स्टेट चेंज नहीं कर ले. दैट इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट. वो जो है उस सब्सटेंस की लेटेंट हीट कहलाती है, वो सब्सटेंस की लेटेंट हीट कहलाती है. सिमिलरली अगर मेरे पास लेट्स सपोज आई हैव वाटर, मेरे पास कुछ वाटर है, जब मैं उस वाटर को हीट करूँगा तो वाटर नॉर्मली तो रूम टेम्परेचर पर होगा. आप वाटर को हीट करेंगे, देन इट्स टेम्परेचर इज गोइंग टू राइज. तो जब उसका टेम्परेचर राइज कर होगा, देन व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी. तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा. अब ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज चेंजिंग, दैट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी. वो इसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी. बट व्हेन इट रीचेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट व्हिच इज 100 डिग्री सेल्सियस, देन एट दैट टेम्परेचर the substance starts boiling and it will then change its state to gaseous state. And during the change of state, I've told you earlier as well in the previous class as well, कि जब आपकी change state हो रहा होता है, तो during that process the temperature does not change. तो at the boiling point आपको जो substance होगा वो boil कर रहा होगा, it will be changing its state from liquid to gaseous state, and it will not be it will be absorbing energy. So during that process, whatever energy it will be absorbing when the state of change is taking place, that energy will be called your latent heat. वो energy जो आपकी वो latent heat कहलाती है. यानी कि इस सिचुएशन में क्या हुआ, the substance is absorbing heat energy. आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं. If I want to freeze a liquid, अगर मैंने लिक्विड को फ्रीज करना है, then what I have to do, I have to cool down the liquid. आप लिक्विड को ठंडा करेंगे तभी वो आपकी अपनी स्टेट चेंज करेगा फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट. तो लिक्विड को आप जब कूल डाउन करें, देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द सब्सटेंस. आप उस सब्सटेंस हीट एनर्जी ले रहे हैं, या इन अदर वर्ड यू कैन से कि द सब्सटेंस इज नाउ रिलीजिंग द एनर्जी. सब्सटेंस जो आपका है
वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी गिव आउट कर रहा है। तो अगर सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी गिव आउट करेगा ड्यूरिंग दैट होल प्रोसेस, जितनी भी हीट एनर्जी वो रिलीज करेगा, दैट विल बी कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट, वो भी जो है इसकी वो लेटेंट हीट कहलाएगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट जो आपकी होती है दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि सब्सटेंस एब्जॉर्ब करती है या रिलीज करती है व्हेनेवर इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो दैट इज कॉल्ड योर लेटेंट हीट, वो हमारा जो है लेटेंट हीट कहलाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लेटेंट हीट? ओके, now there are two types of latent heats. latent heats की जो है वो आपकी दो टाइप्स होती हैं। one is called your latent heat of vaporization, one is called your latent heat of vaporization and the second one is called your latent heat of fusion। ठीक है, तो वी हैव दीज टू टाइप्स ऑफ latent heats। हमारे पास जो है वो latent heat of vaporization होती है, हमारे पास latent heat of fusion होती है। ये दोनों जो हैं दे बोथ हैव देयर ओन डेफिनेशन, दोनों की जो है अलग डेफिनेशन है। तो लेट्स डू latent heat of vaporization फर्स्ट। ठीक है, लेट्स डू latent heat of vaporization। नाउ एज द वर्ड यूज्ड हियर दैट इज योर वेपराइजेशन। यहाँ जो आपका वर्ड यूज हो रहा है वो वर्ड आपका यहाँ पे यूज हो रहा है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपकी कोई सब्सटेंस जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा, इट इज चेंजिंग स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। ठीक है, सो जितनी भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम एट फिक्स टेम्परेचर, तो वो जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा दैट विल बी कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ heat energy absorbed or released when a substance changes its state from liquid to gas or vice versa at a fixed temperature। ठीक है, तो फिक्स टेम्परेचर पे जब भी आपकी सब्सटेंस चेंज हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, यानी अगर आपकी लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है या गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो जो भी आपकी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, वो जो आपकी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। एंड दिस प्रोसेस शुड टेक प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, ये जो प्रोसेस आपका फिक्स टेम्परेचर पे होना चाहिए। एंड दिस फिक्स टेम्परेचर हैज़ टू बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ये जो आपका फिक्स टेम्परेचर है, दिस फिक्स टेम्परेचर हैज़ टू बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपका चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा होता है या रिलीज कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल इसका आपको होता है कैपिटल एल, और इसके जो है वो सब्सक्रिप्ट में एक छोटा सा हम वी डाल देते हैं। ये जो एल वी आपका होता है, दिस एल वी इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है इसी का आपका फर्दर एक मतलब कि टॉपिक है दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है, इसमें व्हाट वी डू, वी फिक्स द मास, यानी ऊपर जो आपका ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपने पढ़ा था, इट डजंट मैटर दैट व्हाट द मास ऑफ सब्सटेंस इज, अगर आपके सब्सटेंस का मास कुछ भी हो, इट डजंट मैटर इन दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इन दैट सिचुएशन द मास ऑफ द सब्सटेंस हैज टू बी 1 kg, यानी कि इफ यू हैव 1 kg ऑफ एनी लिक्विड, तो उस 1 kg ऑफ लिक्विड की स्टेट चेंज करने के लिए फ्रॉम
लिक्विड टू गैस और फ्रॉम गैस टू लिक्विड, जो भी आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सबसे या रिलीज करेगा, दैट विल बी कॉल्ड योर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? इट इज the amount of heat energy absorbed or released by a substance whose mass is 1 kilogram to change its state from liquid to gas or from gas to liquid at fixed temperature. ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने मास जो है, मास को फिक्स कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, और वो मास हमने स्पेसिफिक कर दिया 1 किलोग्राम. यानी कि if I have 1 kilogram of any substance, if I have 1 kilogram of liquid or if I have 1 kilogram of gas, उसकी जो आप स्टेट चेंज करते हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैस और फ्रॉम गैस टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड एट इट्स फिक्स टेम्परेचर, जो भी आपकी वो अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वो उसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपकी कुछ भी हो सकती है. अगर आपका मास ज़्यादा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपकी ज़्यादा होगी, मास कम होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपकी कम होगी. लेकिन आपकी जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, दिस इज फिक्स्ड. किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन आपकी कांस्टेंट होती है. ठीक है, तो लेटेंट हीट इज डिपेंडिंग ऑन मास, मोर द मास मोर the latent heat, less the mass less the latent heat. ठीक है, of vaporization. तो latent heat जो आपकी होती है, that latent heat is depending upon the mass of a substance. मास ज़्यादा होगा latent heat of vaporization ज़्यादा होगी, मास कम होगा latent heat of vaporization आपकी कम होगी. But specific latent heat of vaporization is constant. It depends on the substance. ठीक है, आपकी जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है वो सब्सटेंस पे डिपेंड करती है. Water has its own specific latent heat. Iron has its own specific heat of vaporization. Honey has its own specific latent heat of vaporization. इन सब की जो specific heat of vaporization आपकी है वो different होगी. तो specific latent heat of vaporization आपकी है वो substance to substance डिपेंड करती है, लेकिन जो आपकी latent heat of vaporization है वो डिपेंड अपॉन द मास. मास जब कम होगा लेटेंट हीट आपकी कम होगी, मास ज़्यादा होगा लेटेंट हीट आपकी जो है वो ज़्यादा होगी. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस. अच्छा, इसमें वन मोर थिंग, जो सिंबल है आपका, सिंबल जो आपके स्पेसिफिक लेटेंट हीट का, दैट इज योर स्मॉल एल वी. ठीक है, स्मॉल एल की आप क्वेश्चन है जी. सर ये जो स्पेसिफिक लेटेंट वेपोराइजेशन है, इसमें जितना भी मास होगा वो लेटेंट हीट उतनी ही रहेगी. लेटेंट हीट जो है वो तुम्हारी मास पे डिपेंड कर रही है, लेकिन जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है. ठीक है, अगर स्पेसिफिक हीट है लेटेंट हीट है तो वो उसके लिए मास तो हमेशा 1 किलोग्राम ही होगा ना. तो अगर आपका लेट्स सपोज 10 किलोग्राम कोई सब्सटेंस है तो 10 किलोग्राम की लेटेंट हीट अलग होगी, लेकिन 10 किलोग्राम की स्पेसिफिक लेटेंट हीट सेम होगी. ठीक है, इसको हम सिंबल जो इसका दैट सिंबल इज स्मॉल एल वी. तो एल वी से जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आपका एक फॉर्मूला भी है, जो कैपिटल एल स्मॉल यानी कि जो लेटेंट होता है दैट इज इक्वल टू स्मॉल एल वी मल्टीप्लाई बाय मास. ठीक है, इसमें ये जो कैपिटल एल वी आपका यूज हो रहा है, दैट इज योर हीट एनर्जी दैट इट इज एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग व्हेनेवर इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट. तो ये जो आपके दैट इज जो लेटेंट हीट
ऑफ वेपराइजेशन। ये जो स्मॉल LV है दैट इज योर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हीट एनर्जी है जो कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम मास हो तो उसको इतनी हीट एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो अपनी स्टेट चेंज कर सके। और जो स्मॉल m है दैट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस जो कि अपनी स्टेट चेंज करे। तो आपके 3 ये फार्मूला है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपका रिलेट कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को और उसके मास को। तो अगर आपको पास मास पता है एंड यू नो दिस कांस्टेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो आप फाइंड कर सकते हैं दैट हाउ अबाउट हीट एनर्जी इट विल बी अब्जॉर्बिंग। ठीक है, तो यूजुअली जो पेपर में आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दे डोंट स्पेसिफिकली आस्क कि आप जो LV निकालें, वो सिंपली दे विल गिव यू द मास। आपको कहेंगे कि आपके पास जो 5 किलोग्राम आइस है और आपको आइस का जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपको बता दिया जाएगा एंड यू विल बी टोल्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल द आइस इनटू वाटर। तो आइस इनटू वाटर कन्वर्ट करने के जितनी भी वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो तो आपकी ये वाली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी ना। तो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। तो दिस LV जो आपका है, दिस LV इज बेसिकली योर हीट एनर्जी एज वेल, क्योंकि आपकी हीट एनर्जी है जो कि वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आप इसको जब हीट एनर्जी के सिंबल Q से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एनीवन? ये जो आपका कैपिटल LV है विच इज़ योर लेटेंट हीट, इसका जो यूनिट आपका होता है दैट यूनिट इज जूल्स। इसका यूनिट जो आपका है वो जूल्स होता है। लेकिन आपका ये जो स्मॉल LV है इसका जो आपका यूनिट होता है दैट यूनिट इज जूल्स पर kg। ठीक है, इसका यूनिट आपका होता है वो जूल्स पर kg होता है। क्योंकि अगर आपने स्मॉल LV आपने यहाँ से निकालना है इस फॉर्मूले तो ये m वहाँ जाके आप डिवाइड कर देंगे। तो जब m वहाँ जाके आप डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल LV अपॉन स्मॉल LV, कैपिटल LV अपॉन स्मॉल m, तो आपका जो यूनिट है वो जूल्स अपॉन kg आ जाएगा। तो दिस जूल्स पर kg इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? बेटा आपकी आवाज कट रही है, आई कांट हियर यू। सर कैपिटल LV क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल LV इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, एंड स्मॉल LV इज योर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कैपिटल LV इज योर सिंपल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन व्हेयरएज स्मॉल LV इज योर स्पेसिफिक लेटेंट वेपराइजेशन। किसका? वो LV का, उसके आगे तो आपने बस LV ही होता है उसका फॉर्मूला। किसका? ये स्मॉल LV का पहला ऊपर स्मॉल नहीं, कैपिटल LV इसका ये फार्मूला है इसका, ये रहा ये फार्मूला। अच्छा, इसका ये एक, ठीक है, ये फार्मूला लिखा हुआ है आपका। ओके सर, ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। Okay, now let's do the next topic. Next is your latent heat of fusion. अच्छा, latent heat of fusion क्या होती है? It is the same, लेकिन इसमें क्योंकि आपकी सब्सटेंस फ्यूज हो रही होती है, यानी अगर आपकी सब्सटेंस जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। जब वो सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज करेगा देन इट विल बी अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। सॉलिड से लिक्विड में हीट एनर्जी वो अब्जॉर्ब कर रहा होगा, बट व्हेन इट विल बी चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इट विल बी रिलीजिंग हीट एनर्जी। तो और जब भी आपका ये यानी सबसे अपनी स्टेट चेंज करती है, it change state at a fixed temperature and that fixed temperature in this situation is the melting point of the substance. So what is leading to fusion? Melting point के ऊपर at the melting point जो भी substance आपकी है वो heat energy absorb करेगी या release करेगी to change its state from solid to liquid or from liquid to solid. That amount of heat energy absorbed or released will be called your latent heat of fusion. वो आपकी latent heat of fusion कहलाएगी। ठीक है, तो what is latent heat of fusion? It is the amount of heat energy absorbed or released it is the amount of heat energy absorbed or released whenever a substance change
its state from solid to liquid or from liquid to solid at fixed temperature. This fixed temperature is what? This fixed temperature is the melting point of the substance. ठीक है, तो जब भी आपकी जो सब्सटेंस है अपनी स्टेट चेंज कर रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट विल आइदर एब्जॉर्ब एनर्जी और इट विल रिलीज एनर्जी। तो जो भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर, सो दैट इट कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, तो वो जो आपकी हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, दैट हीट एनर्जी विल बी कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो आपकी हीट एनर्जी कहलाएगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो हीट एनर्जी आपकी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। अच्छा, ये जो आपकी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है दैट सिंबल इज कैपिटल LF। ठीक है, LF जो होता है दैट इज द सिंबल ऑफ फ्यूजन। जो स्मॉल इसके सब्सक्रिप्ट में आप जो F डाला हुआ है, दिस F रिप्रेजेंट दैट इट इज योर फ्यूजन। ये आपकी लैटेंट ऑफ फ्यूजन होती है। इट इज द सेम एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो आपकी ये हीट एनर्जी होती है जो कि एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही होती है। तो यूजुअली यू कैन यूज इस सिंबल की जगह आप Q भी यूज कर सकते हैं। Q और हीट एनर्जी आपकी सेम है इसके अंदर। अच्छा, इसमें कोई मसला बेटा किसी को फ्यूजन में? ओके, इसी का आपका सब टॉपिक है, दैट इज योर स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक लैटेंट ऑफ फ्यूजन? इट इज इन द सेम वे जैसे कि हमने वेपराइजेशन किया था कि इफ आई हैव अ सब्सटेंस whose mass is 1 kilogram, if I have 1 kilogram of a substance, so in order to change its state from solid to liquid or from liquid to solid at a fixed temperature, जितनी हीट एनर्जी आपका वो 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, दैट विल बी कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो जो आपकी हीट एनर्जी होती है वो आपकी स्पेसिफिक हीट एनर्जी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed or released by a substance of mass 1 kilogram at a fixed temperature to change its state from solid to liquid or from liquid to solid। ठीक है, टू चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो ये जो आपको कहलाता है दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपकी स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। इसका जो आपका सिंबल है दैट सिंबल इज स्मॉल LF। ठीक है, जो स्मॉल LF है, दिस स्मॉल LF इज रिप्रेजेंटिंग योर स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आपका स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहला रहा होता है। दिस इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है बिल्कुल सेम जैसा आपका होता है, दैट कैपिटल LF इज इक्वल टू स्मॉल LF मल्टीप्लाई बाय M। ठीक है, इसमें ये जो कैपिटल LF है, दिस कैपिटल LF इज योर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि टोटल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि आपके ओवरऑल कोई सब्सटेंस को चाहिए उसको मेल्ट करने के लिए या उसको फ्रीज करने के लिए। दिस स्मॉल LF इज योर स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये कांस्टेंट होती है, सबसे टू सबसे आपकी डिपेंड करती है। इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक लैटेंट ऑफ फ्यूजन में मास 1 किलोग्राम होता है, यानी अगर आप कहते हैं सब्सटेंस है जिसका मास 1 किलोग्राम है, तो उस सब्सटेंस का मास जिसका 1 किलोग्राम है, तो जो भी हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब या रिलीज करती है वो आपकी कहलाती है स्पेसिफिक लैटेंट ऑफ फ्यूजन, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल LF। ये जो स्मॉल m है, दिस इज कॉल्ड द मास, ये उस सब्सटेंस का मास कहलाता है। सो अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता हो तो आप उस तीनों चीज़ों से या दो चीज़ों से आप कोई भी तीसरी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको मैं बता दूं कि सब्सटेंस जो है आपकी वो ये है और उसका मास इतना है, और आपसे पूछोगे वो कितनी हीट एनर्जी उसको चाहिए होगी ताकि वो सब्सटेंस आपकी मेल्ट कर जाए, देन यू विल बी यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, डायरेक्ट हम इसका नाम नहीं यूज़ करते, बल्कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड द नेम ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वी यूज़ द वर्ड हीट एनर्जी, यानी कि हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ सब्सटेंस। इफ
an examiner asks you that how much heat energy is required to melt a substance, so definitely he is asking about the latent heat of fusion. But if someone asks you about how much heat energy is required to boil a substance or to change a state, to basically change the state of a substance from liquid to gas, then we are talking about the heat energy which is your latent heat of vaporization. तो ये आपका फार्मूला है latent heat of fusion का. इसमें कैपिटल LF जो आपका दैट इज योर latent heat of fusion, स्मॉल LF जो आपका ये दैट इज योर स्पेसिफिक latent heat of fusion जिसका मास 1 किलोग्राम होता है, और ये स्मॉल LF जो आपका होता है वो कांस्टेंट होता है, सबसेंस टू सबसेंस डिपेंड करता है. और जो आपका स्मॉल m है दैट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, ये आपका सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस का मास है. ठीक है. अच्छा, देन वी टॉक अबाउट द यूनिट्स. इनके जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स भी इसके सेम होते हैं, सेम एज द यूनिट्स ऑफ latent heat of vaporization. जो latent heat of fusion होती है इसका जो यूनिट आपका होता है दैट यूनिट इज जूल्स, इसका यूनिट आपका जो वो जूल्स होता है. और जो आपका स्मॉल LF है इसका जो यूनिट आपका होता है दैट यूनिट इज जूल्स पर kg, जूल्स पर kg, ये आपका यूनिट होता है स्मॉल LF. स्पेसिफिक latent हीट का आपका यूनिट जो है वो ये चीज़ होती है. तो ये आपका टॉपिक है स्पेसिफिक latent heat एंड latent heat of fusion, और ये सारा आपका इस पर टॉपिक है. यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टू टॉपिक्स? आज जो भी टॉपिक्स के हैं इससे रिलेटेड एनी क्वेश्चंस? सर आप इसके नोट्स अपलोड करें? यस, आई विल बी अपलोडिंग द नोट्स. सर ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, before I finish this class, I think सर मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो दीदी. सर latent heat of fusion और latent heat of vaporization का एक छोटा सा ब्रीफ दे देंगे, इनके डिफरेंस का, बस डिफरेंस का ब्रीफ. देखो, डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ एक ही है तकरीबन. ठीक है, वो डिफरेंस क्या है कि फ्यूजन में जो स्टेट चेंज हो रही होती है वो हो रही होती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. लेकिन अगर आपको जो वेपराइजेशन होती है, वेपराइजेशन में क्या होती है कि चेंज ऑफ स्टेट हो रही होती है फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस और फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड. तो सिर्फ स्टेट ऑफ चेंज जो आपकी होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से यू कैन से कि आपका ये जो है वो डिफरेंट होते हैं. तो डिफरेंट इनमें सिर्फ यही है कि स्टेट जो है किससे किसमें चेंज हो रही है. सर सॉलिड टू गैसेस कोई स्टेट चेंज नहीं होती? सॉलिड टू गैस स्टेट चेंज होती है, लेकिन उसके लिए जो है ना वी आर दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, और उसका हम जो है वो डिटेल पढ़ेंगे भी नहीं. इसमें हम सिर्फ फोकस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड